ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਸਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਡੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਟਰੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ WTO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਬਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ 2023 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਇੰਕਰੀਜ਼ਡ ਇਟਸ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਫੰਡ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਫੰਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ? 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ। 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CBSE ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ NPCI ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਲਿਊਟ ਡਾਕਟਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ। HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਮ ਦਿਲ ਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਲਾਮ ਦਿਲ ਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 360 ਸਿਲੈਕਟਡ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਿਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਚੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰਮਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ M ਪ੍ਰਸੰਨਨ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਬੋਰਡ ਸੈਂਟਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਿਵਜ਼ ਅਪਰੂਵਲ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿੰਨੇ? 16 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਲਵੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ 1 ਵੀਕ ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ कि 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ऑब्जर्व किया जाएगा।
कोरियन एयर एयरलाइन है जो इसनों 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, जिसनों एविएशन इंडस्ट्री का ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, इसनों दिता गया एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड द्वारा, जो कि बॉटसन दे विच है। ये पहली बार 1974 दे विच दिता गया सी। नेक्स्ट है डोनाल्ड रम्सफेल्ड फॉर्मर डिफेंस सैक्रटरी से यूएसए दे, इन्हां दी रीसेंटली डेथ हो गई है। इंडिया दे फर्स्ट इंडिजिनसली मेड प्लाज्मा डीएनए वैक्सीन, प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है जो इंडिया की पहली जायकॉव डी जो कि जायडस कैडिलिया द्वारा बनाई गई है। इसका हैडकुआटर है अहमदाबाद दे विच। एक बार इसनों अप्रूवल मिलती है तो 12 तो 18 साल के बच्चों के उत्ते इसनों टैसट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश द्वारा वाईएसआर बीमा स्कीम की शुरुआत की गई। राजस्थान सरकार द्वारा चेंडाविया एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है कालबेलिया डांस फॉर्म नूं सिखाने के लिए। इंडियन रेलवेज ओपन इट्स फर्स्ट मूवेबल फ्रैश वाटर टनल एक्वेरियम। इंडिया रेलवे ने अपना पहला फ्रैश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया क्रांतिवीरा संघोली रायनायना रेलवे स्टेशन बेंगलोर दे विच। इंडिया का ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग न्यूज़पेपर है मुंबई समाचार ने 200 साल पूरे किए। ये गुजराती लैंग्वेज दे विच पब्लिश किया गया। गवर्नमेंट हैज़ इंप्लीमेंटेड अशवा ला है जो इन नागालैंड दे विच इंप्लीमेंट किया गया। नागालैंड कैपिटल कोहिमा है। इस तो अलावा अशवा ला की अगर आप गल करते हैं आर्मड फोर्सिस स्पैशल पावर एक्ट 1958 दे विच यह बनाया गया। ठीक है जी, सारी दी सारी न्यूज़ पंजाबी दे विच भी अवेलेबल ने, चाहो तो पंजाबी दे विच स्टडी कर सकते हो। आप चलांगे नैक्सट पोर्शन यानी कि स्टैटिक पोर्शन दे वल। स्टैटिक पोर्शन दे विच वाइल्ड सेंचुरीज कुछ दिनों तक अपनी खत्म हो जाएगियाँ। स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब के रिलेटेड कुछ सामान इस दे विच करवाया जाए, स्टैटिक करवाया जाए पंजाब का, तो उस दे विच आपां पंजाब शुरू करांगे इस तो बाद। ठीक है जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अपनी खत्म हो जाएगी इस वीक दे विच। नैक्सट वीक तो आप पंजाब रिलेटेड फैक्ट शुरू कर लाँगे। तो पौंडीचेरी दे विच उसूडू बर्ड सेंचुरी। राजस्थान दे विच भारत बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, भारत बर्ड सेंचुरी राजस्थान। हरियाणा दे विच सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा दे विच। गोवा सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा दे विच। उड़ीसा की गल करते हैं चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, सुना बेदा टाइगर रिजर्व। इस तो अलावा चंद का एलीफेंट रिजर्व भी कितने लोकेटेड है उड़ीसा दे विच। ठीक है, जिन्हें भी आप पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये पुराने क्वेश्चंस ने, एग्जाम के क्वेश्चंस ने, उन्होंने विचों चक्के हुए पॉइंट्स ने कि डायरैक्टली पूछा गया सी सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कितने है या चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी कितने लोकेटेड है। नैक्सट चलते हैं अज दे फर्स्ट न्यूज़ दे वल। विच डे इज़ ऑबजर्वड एज इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए दे इंडिपेंडेंस डे नूं किस दिन ऑबजर्व किया जाता है? 4 जुलाई नूं ऑबजर्व किया जाता है। 4 जुलाई कल के दिन यूएसए का इंडिपेंडेंस डे ऑबजर्व किया। डिटेल है डिस्कस करते हैं। 4 जुलाई इज़ ऑबजर्वड एज इंडिपेंडेंट डे ऑफ यूएसए टू कमेमोरेट the adoption of Declaration of Independence in 4th July 1976 from ब्रिटेन तो आज़ाद होया सी यूएसए 4th जुलाई 1776 दे विच। इस तो अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स भी ऑबजर्व किया जाता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई के पहले सैटरडे नूं ऑबजर्व किया जाता है इस साल। 3 जुलाई 3 जुलाई नूं इसनूं ऑबजर्व किया गया। ये पहली बार 2005 दे विच ऑबजर्व किया गया सी यूनाइटेड नेशंस द्वारा। इसकी थीम रही है कोऑपरेटिव्स फॉर बिल्डिंग अ पीपल सेंटर्ड एंड एनवायरमेंटली जस्ट रिकवरी। ठीक है जी, यह इस दिन की थीम रही। नेक्स्ट है
हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया बुक के राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने। हालांकि ये बुक आप पहले भी डिस्कस की हुई है, उस टाइम अनाउंसमेंट कर दी गई सी, हुण फाइनली इसनू रिलीज़ किया जा रहा है। द लाइट ऑफ एशिया, इस बुक के राइटर ने जयराम रमेश, जयराम रमेश। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं तो रस्किन बॉन्ड रिसेंटली इन्होंने बुक जारी की है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। तहमीमा अनाम, तहमीमा अनाम, तहमीना अनाम द्वारा स्टार्टअप वाइफ नाम की बुक लिखी गई, द स्टार्टअप वाइफ। सुनदीप मिश्रा कुछ दिन पहले भी डिस्कस करी है, सुनदीप मिश्रा की बुक का नाम सीगा फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। दूती चंद के नाम के उत्ते या उन्होंने बायोग्राफी कह सकते हैं लिखी गई है, फियर्सली फीमेल नाम की बुक किन्ना द्वारा, सुनदीप मिश्रा द्वारा। कौशिक बासु, कौशिक बासु द्वारा पॉलिसी मेकर जर्नल, पॉलिसी मेकर जर्नल, इस बुक को लिखा गया है, राइटर ने इस बुक के कौशिक बासु। नेक्स्ट है सुमित मलिक, सुमित मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सुमित मलिक किस खेल तो बिलोंग करते हैं, सुमित मलिक रिसेंटली न्यूज़ दे विच ने किस खेल तो बिलोंग करते हैं, वैसे ये हरियाणा तो बिलोंग करते हैं, याद रखांगे। इस तो इलावा यह बिलोंग करते हैं रैसलिंग तो, किस तो बिलोंग करते हैं, रैसलिंग तो। क्यों न्यूज़ दे विच ने इन्हों बैन किया गया, बैन कर दिता गया 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए किस द्वारा, यूनाइटेड वर्ल्ड रैसलिंग द्वारा, यूनाइटेड वर्ल्ड रैसलिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड रैसलिंग जिसका हैडकुआटर सिंगापुर दे विच है, इस द्वारा 2 साल के लिए, 2 साल के लिए सुमित मलिक नूं बैन किया गया। सुमित मलिक किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, रैसलिंग तो बिलोंग करते हैं, किस स्टेट तो बिलोंग करते हैं, हरियाणा तो बिलोंग करते। Which of the following has developed short span bridging system inducted by Indian Army? बेसिकली इंडियन आर्मी द्वारा शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम नू इंडक्ट किया गया। किन्ने इंडक्ट किए गए ने, 12 इंडक्ट किए गए। ठीक है, ये की है, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है। तो यानी कि जिथे अगर वाटर बॉडी है, कोई भी वाटर बॉडी उतों कोई चीज़ों पास करवाना है तो उत्थे कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए या कहांगे पोर्टेबल, पोर्टेबल ब्रिज बनाए जाएंगे। पोर्टेबल ब्रिज नाम के सिस्टम ने एक ट्रक की तरह होएगा, उसके उपरों ब्रिज ओपन होकर प्रॉपर वाटर बॉडी के उत्ते बन जाएगा। 10 मीटर्स की इसकी पावर होंगी है, इसकी लिमिट होंगी है 10 मीटर। तो 10 मीटर्स वाले शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 12 इंडक्ट किए गए इंडियन आर्मी द्वारा। इन्हों किसने बनाया है, डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO एंड LNT। DRDO ने LNT के नाल मिलकर बनाया। लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो कंपनी है जो इस दे नाल मिलकर DRDO द्वारा इसनों बनाया गया। DRDO की अगर गल करते हैं, DRDO 1 जनवरी 1958 नूं बनाया गया सी, न्यू दिल्ली दे विच इसदा हैडकुआटर है। और जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी इस दे हैड ने। इसरो की गल करते हैं, इसरो की अगर आप गल करिए 15 अगस्त 1967 दे विच इसनूं बनाया गया सी। इसरो की अगर आप गल करते हैं, करनाटका बेंगलोर दे विच हैडकुआटर है, के सिवान इस दे हैड ने। Which of the following has got license from DRDO to manufacture and market 2-deoxy-D-glucose? 2DG रिसेंटली याद होएगा, 2DG नाम की वैक्सीन बनाई गई सी DRDO द्वारा। DRDO द्वारा वैक्सीन बनाई गई सी, जिसका बाद दे विच कॉन्ट्रैक्ट दे दिता गया सी डॉक्टर रेड्डी को। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी है जिहड़ी हैदराबाद दे विच लोकेटेड है, इसनूं इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिता गया सी। हुण एक होर कंपनी नूं लाइसेंस दिता गया, लाइसेंस दिता गया फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स जो कि हैदराबाद दे विच लोकेटेड है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कित्थे लोकेटेड है, तो हैदराबाद दे विच लोकेटेड है। DRDO द्वारा इस वैक्सीन नूं बनाया गया सी, तो DRDO द्वारा ही इसका लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग दे लई और मार्केटिंग दे लई दे दिता गया है लॉरस लैब्स नूं। ठीक है जी, याद रखेंगे। अच्छा, भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन बनाई गई सी जाइडस कैडिलिया द्वारा। हुणे आप वैक्सीन डिस्कस की सी, जाइडस कैडिलिया द्वारा बनाई गई है।
जो कि 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। हैदराबाद बेस्ड टेक्नोलॉजी R&D फर्म है ग्रीन रोबोटिक्स। कंपनी का नाम है ग्रीन रोबोटिक्स। इसने की बनाया, डिज़ाइन और डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट इंडेजीनियस ड्रोन डिफेंस डॉम काल इंद्राजाल विद कैपेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग 1000 to 2000 किलोमीटर्स एरिया। बेसिकली इत्थे डिस्कस करते हैं कि जिस तरीके नाल रिसेंटली आप डिस्कस किया सी इजराइल और गाजा दे विच लड़ाई हुई सी, इजराइल ने की किया सी अपने उपर एक डॉम एस्टैबलिश किया सी, जिस डॉम दे नाल अगर गाजा इन्हां दे उत्ते मिसाइल फायर करती सी तो मिसाइल इत्थे ही डिस्ट्रॉय हो जाती सी। ठीक है, थल्ले दे जिहड़े इलाके ने उन्हां नूं घट नुकसान हुंदा सी, बहुत घट मिसाइल पेनीट्रेट करके अंदर जा पाईयां सी। ठीक है, इस करके इजराइल नूं नुकसान घट होया सी। हुण सिमिलर तरीके की टैक्नोलॉजी इंडिया दे विच डेवलप की गई है। इंडिया दे विच किसने डेवलप की है, तो इसनूं डेवलप किया गया जीन रोबोटिक्स द्वारा। ठीक है, नाम की रखा गया, इंद्रजाल रखा गया है और 1000 to 2000 किलोमीटर्स के एरिया नूं ये प्रोटैक्ट कर सकते। ठीक है जी। RBI हैज़ imposed a penalty of ₹25 lakh 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है किस बैंक के उत्ते फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजनस ऑफ डायरैक्शंस ऑन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स ने जिहड़े RBI द्वारा डिसाइड किए गए हैं, इन्हां दी कंप्लायंस ना करन दे लई, इन्हां नूं लागू ना करन दे लई, इन्हां नूं फॉलो ना करन दे लई 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है पंजाब एंड सिंध बैंक के उत्ते। पंजाब एंड सिंध बैंक। रिसेंटली आप गल करते हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI बैंक, तिन्हों के रिलेटेड जिन्ने भी स्टैटिक फैक्ट सीगे आप डिस्कस कर ले सी। इन्हां दी हैडकुआटर, इन्हां दे चेयरमैन प्लस इन्हां दी कदों इन्हां नूं बनाया गया सी, ये भी आप डिस्कस कर चुके। ठीक है जी। हुण अज डिस्कस करांगे पंजाब एंड सिंध बैंक बारे। पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 दे विच बनाया गया सी। पंजाब एंड सिंध बैंक का हैडकुआटर न्यू दिल्ली दे विच है और पंजाब एंड सिंध बैंक के जो MD ने कौन ने, एस कृष्णन ने जो पंजाब एंड सिंध बैंक के MD ने। नेक्स्ट, हू हैज़ बिकम हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन ऑन द हॉपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021। हॉपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 दे विच पहले नंबर पर किन्ना दा नाम आ गया सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आ गया सी। ये आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सैकेंड नंबर पर ड्वेन जॉनसन रहे ने। ठीक है, अगर इंडिया के विचों गल करते हैं, इंडिया के विचों रिच लिस्ट के विच कौन उपर रहे ने, तो विराट कोहली रहे। विराट कोहली पहले नंबर पर रहे ने। ठीक है जी। इस तो इलावा इस लिस्ट के विच दूसरे इंडियन नाम सीगा प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा का नाम दूसरे इंडियन नामां दे विचों एक सी। ठीक है जी। अच्छा, कॉमेंट बॉक्स के विच इन्हां क्रिकेटर्स के रिलेटेड इन्हां दी बुक्स दसनियां ने। अगर किसी नूं बुक्स याद होन तो इन्हां क्रिकेटर्स के रिलेटेड बुक्स दसनियां ने। फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा की रिसेंटली बुक सी, सुरेश रैना की रिसेंटली बुक जारी की गई सी, बिलीव नाम की बुक है। ठीक है, इस तो इलावा सुनील गवास्कर की इंपोर्टेंट बुक है, MS धोनी के नाम के उत्ते भी बुक है। इन्हां दी बुक्स का नाम कमेंट बॉक्स के विच तुसीं दसो। प्लस ब्रांड एंबेसडर दसने ने कि यह किस किस चीज़ के ब्रांड एंबेसडर ने। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, सुरेश रैना, MS धोनी और रोहित शर्मा चारों किसी ना किसी चीज़ के ब्रांड एंबेसडर ने। मल्टीपल चीज़ों के ब्रांड एंबेसडर ने, मैक्सीमम जिन्हें दस सकते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स से भी दसते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है माना पटेल। माना पटेल इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। माना पटेल किस खेल तो बिलोंग करते हैं। माना पटेल किस खेल तो बिलोंग करते हैं। माना पटेल बिलोंग करते हैं स्विमिंग तो। सैकेंड ऑप्शन, माना पटेल स्विमिंग तो बिलोंग करते हैं। क्यों न्यूज़ के विच ने, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई कर लिया। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया। माना पटेल गुजरात, अहमदाबाद गुजरात तो बिलोंग करते हैं। फर्स्ट इंडियन फीमेल बने ने, फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई कर लिया। ठीक है, साजन प्रकाश का नाम आप डिस्कस किया, केरला तो बिलोंग करते सी। उन्होंने क्वालीफाई किया स्विमिंग के लिए मैन कैटेगरी दे विच। वूमेंस कैटेगरी दे विच माना पटेल ने क्वालीफाई किया।
इंडियन नेवी के एथलीट एम पी जबीर ने जो कि केरला तो बिलोंग करते हैं, इंडियन नेवी के एथलीट ने एम पी जबीर जो कि केरला तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालीफाई किया है 400 मीटर हर्डल्स 400 मीटर हर्डल्स के लिए। ये पहले ऐसे इंडियन मेल होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे 400 मीटर हर्डल्स ओलंपिक्स के विच। तमिलनाडु के हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलू फ्लैग बेरर होंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स तो बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज की जाएगियाँ। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स के फ्लैग बेरर कौन होंगे? मरियप्पन थंगावेलू। नेक्स्ट है हु इज़ ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ नथूराम गोडसे जिन्हों ने महात्मा गांधी को गोली मारी सी, इन्हों के नाम के उत्ते एक बायोग्राफी, इन्हों की बायोग्राफी लिखी गई है नथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसीनेशन। नथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसीनेशन। इस बुक के राइटर कौन ने? धवल कुलकर्णी द्वारा इस बुक को लिखा गया और 2022 के इस बुक को रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, अजे अनाउंस की गई है, नैक्सट ईयर इसको रिलीज़ किया जाएगा। नथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसीनेशन, धवल कुलकर्णी। इस तो इलावा दो इंपॉर्टेंट नाम होर न्यूज़ के विच ने एन वेणुधर ने जिहड़े इन्होंने चार्ज लिया डायरैक्टर जनरल का ऑल इंडिया रेडियो के डायरैक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए ने, कौन नामित किए गए ने? एन विनुधर। इस तो इलावा इंडियन अमेरिकन शैलना डी कुमार नूं अपॉइंट किया गया फैडरल जज ऑफ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिचिगन इन USA। आप पहले फ्लोरिडा रिलेटेड एक नाम डिस्कस किया, फैडरल जज अपॉइंट किए गए सी, उसी तरीके नाल मिचिगन डिस्ट्रिक्ट है जो इत्थे फैडरल जज नामित किए गए ने शैलना डी कुमार। ठीक है, ये पहले ऐसे फैडरल जज ने साउथ एशियन डिसेंट के जिन्होंने मिचिगन के अपॉइंट किया गया। साउथ एशियन डिसेंट के पहले फैडरल जज कौन बने ने? शैलना डी कुमार। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल इंडिया मिशन इन 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किसने की सी? इसनूं किया गया सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। न्यूज़ दे विच है क्योंकि 1 जुलाई 2015 नूं 1 जुलाई 2015 नूं इसने 6 साल पूरे कर ले ने। 1 जुलाई 2015 नूं लॉन्च किया गया सी और 1 जुलाई 2021 नूं इसने 6 साल पूरे किए ने। डिजिटल इंडिया मिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया सी, याद रखांगे। इस तो इलावा नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, इस तो इलावा MSME मिनिस्टर भी ने। नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर मिनिस्टर प्लस टूरिज्म मिनिस्टर ने। दामोह मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने। डॉक्टर हर्षवर्धन हैल्थ मिनिस्टर साइंस एंड टैक मिनिस्टर प्लस अर्थ साइंस मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं। यह चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। किरण रिजिजू की गल करिए, किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने प्लस इन्हां लवे करंट आयुष मिनिस्ट्री का भी चार्ज है और यह बिलोंग करते हैं अरुणाचल वैस्ट तो। अरुणाचल वैस्ट इन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है जी। इस तो इलावा इन्हां रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करांगे तो नितिन गडकरी MSME मिनिस्टर ने इन्होंने अनाउंस किया है टू ब्रिंग रिटेल एंड होलसेल ट्रेड इनटू MSME कि जो रिटेल और होलसेल ट्रेड है, जो मार्केटिंग है, रिटेल की मार्केटिंग है और होलसेल की मार्केटिंग है, इसनों MSME इंडस्ट्रीज़ दे विच इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है जी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज दे विच इसनों इंक्लूड कर दिया जाएगा ताकि इन्हों भी बेनीफिट पहुँचाए जा सकन RBI गाइडलाइंस के अंडर प्राइवेट सैक्टर लैंडिंग की प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग के लिए। प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर ने, इन्होंने 6th ब्रिक्स ग्रुप है जो ब्रिक्स की कल्चर मिनिस्टर मीटिंग दे नूं होस्ट किया। ठीक है, इंडिया को ब्रिक्स की प्रेजेंसी है इस साल की, तो इस साल जिन्नी भी ब्रिक्स की मीटिंग होणगियां कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। तो कल्चर मिनिस्टर मीटिंग नूं भी किसने होस्ट किया? इंडिया ने होस्ट किया। इंडिया वालों प्रहलाद सिंह पटेल इंडिया के कल्चर अफेयर्स मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। ठीक है जी।
ब्रिक्स दे विच 5 मैंबर कंट्रीज़ ने, ये याद रखांगे। किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने डिसाइड किया टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। वाको इंडियन किक बॉक्सिंग फेडरेशन है जिहड़ी, इसनूं नैशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा दिता जाए। रिसेंटली आर्चरी नूं दिता गया सी नैशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा। हुण उसी तरीके नाल किक बॉक्सिंग नूं प्रमोट करन दे लई किक बॉक्सिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसनूं भी नैशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा दिता गया। ठीक है जी। इस तो इलावा वाको अगर वर्ल्ड लैवल के उत्ते किक बॉक्सिंग की गल करते हैं तो वर्ल्ड लैवल के उत्ते वर्ल्ड एसोसीएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशनस, इसका हैडकुआटर कित्थे है? इसका हैडकुआटर इटली दे विच। ठीक है जी। किक बॉक्सिंग के लिए जो वर्ल्ड लैवल पर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हैडकुआटर इटली दे विच है, और जो इंडिया लैवल पर ऑर्गेनाइजेशन है उसनूं की दिता गया? दर्जा दिता गया नैशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का। नेक्स्ट है विच कंट्रीज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी राफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स हैज़ अनवील्ड सी ब्रेकर मिसाइल सिस्टम। सी ब्रेकर मिसाइल सिस्टम डायरैक्टली पूछा जाएगा किस कंट्री का सिस्टम है? तो इजराइल का है। इसनूं राफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, इत्थे कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो राफाल है, राफाल एयरक्राफ्ट ने जिहड़े ओह बनाए गए ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट नाम की कंपनी है उस द्वारा बनाए गए ने। पर रफाल नाम की एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, वह इजराइल की है। ठीक है जी। उसने की बनाया? सी ब्रेकर बनाया जिसकी स्ट्राइक रेंज 300 किलोमीटर है। ठीक है, मिसाइल सिस्टम है, 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है, याद रखा। ठीक है जी। बाकी कंट्रीज़ रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने। सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया ने OECD और G20 की इनकलूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील नूं साइन किया। इनकलूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील साइन की गई है OECD और G20 की। ठीक है जी। G20 के रिलेटेड फैक्ट आप कई बार डिस्कस किए हैं कि G20 के 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनीयन है। इस तो इलावा G20 की ही गल करते हैं तो इसकी इस साल की प्रेजिडेंसी इटली कोल है। ठीक है, नैक्सट ईयर इंडोनेशिया लवे चली जाएगी, इंडोनेशिया होस्ट करेगा। 2023 की प्रेजिडेंसी इंडिया लवे आनी है और 2024 ब्राज़ील। ठीक है, लास्ट ईयर अगर 2020 की गल करते हैं सऊदी अरेबिया लवे इसकी प्रेजिडेंसी सी, वो आप सारा कुछ पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, OECD के फैक्ट आप पहले नहीं डिस्कस किए तो अज डिस्कस करांगे। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी गल करते हैं 1961 दे विच बनाई गई सी, पेरिस फ्रांस दे विच इसका हैडकुआटर है। नैक्सट है USA ने टर्की और पाकिस्तान नूं उन्हां कंट्रीज़ की लिस्ट दे विच ऐड किया है जिन्हां दे विच चाइल्ड सोल्जर्स का यूज़ किया जाता है, कि जो छोटे बच्चे ने उन्होंने सोल्जर्स की ट्रेनिंग छोटे होंदे तो ही देनी शुरू कर दी जाती है, जो कि गैर कानूनी है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट के अनुसार। ठीक है, तो USA ने टर्की और पाकिस्तान नूं उस लिस्ट दे विच ऐड कर ले। ठीक है जी, कि इत्थे भी बच्चों नूं सोल्जर्स बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, USA ने इस लिस्ट की शुरुआत बेसिकली 2010 दे विच कीती सी, जिस दे विच 6 कंट्रीज़ ऐड कीतियां गईयां सी। 2010 दे विच इस दे विच 6 कंट्रीज़ ऐड कीतियां गईयां सी, हुण इस दे विच 15 कंट्रीज़ शामिल ने। ठीक है, अफगानिस्तान इसका मैंबर है या होर भी डिफरेंट कंट्रीज़ इसदियां मैंबर ने। ठीक है, अच्छा, इसी दे नाल याद रखांगे कि पाकिस्तान रिसेंटली ग्रे लिस्ट दे विच ऐड की गई है। पाकिस्तान नूं ही फीफा द्वारा पाकिस्तान और चैड दोनों कंट्रीज़ नूं अपनी मैंबरशिप तो बाहर कर दिता गया सी, ये याद रखांगे। नैक्सट पाकिस्तान रिलेटेड ही 2 होर इंपोर्टेंट न्यूज़। पाकिस्तान ने फर्स्ट बैच ऑफ चाइना मेड VT4 बैटल टैंक इन्हों आर्मी दे विच इंडक्ट किया। बेसिकली सिंपली याद रखांगे कि जो VT4 बैटल टैंक्स ने, यह कित्थे दे टैंक्स ने? ये चाइना दे टैंक्स ने। पाकिस्तान ने इसनूं खरीदिया सी। पाकिस्तान तीसरी ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने चाइना तो VT4 टैंक खरीदे सी, थाईलैंड और नाइजीरिया तो बाद। पाकिस्तान द्वारा ही अनाउंस किया गया कि जो लोमैड्स नाम की मिसाइल सिस्टम सी, ये LY-80 मिसाइल सिस्टम सी, जो कि चाइना तो ली गई सी, यह प्रॉपर तरीके नाल काम नहीं कर रही है। ठीक है जी,
बेसिकली इस दे उत्ते काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान नूं बेचियां सी तकरीबन 500 मिलियन की अमाउंट के नाल 500 मिलियन की अमाउंट के नाल चाइना तो खरीदियां सी पाकिस्तान ने लॉमैड्स नाम की मिसाइल सिस्टम जिसनूं LY-80 के नाम तो भी जानिया जाता है। पाकिस्तान ने सोचा सी कि इसनूं लद्दाख के रीजन के विच डिप्लॉय किया जाएगा, LOC के रीजन के विच डिप्लॉय किया जाएगा और उत्थों यह इंडिया के उत्ते फायर कर सकणगे, पर यह प्रॉपर तरीके नाल काम नहीं कर रही ने, इसलिए यह न्यूज़ दे विच ने। ब्रिटेन की वन वैब कंपनी द्वारा वन वैब कंपनी द्वारा 36 सैटेलाइट्स नूं ऑर्बिट दे विच भेजिया गया, किस दी हेल्प दे नाल? रशिया दे सोयूज रॉकेट हेल्प दे नाल। ठीक है, सिंपली पूछा जा सकता है वन वैब कंपनी कित्थे दी है? तो ब्रिटेन दी, और सोयूज रॉकेट किस कंट्री का है? तो रशिया का। ठीक है, जिस तरीके नाल GSLV इंडिया का है, ठीक है, या फैल्कन 9 की गल करते हैं तो SpaceX का है, एलन मस्क का है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ कैंसल्ड द एनुअल कन्वर यात्रा ड्यू टू कोविड-19? एनुअल कन्वर यात्रा नूं कैंसल किया कोविड-19 कारण, किस स्टेट द्वारा? तो किस स्टेट द्वारा कन्वर यात्रा परफॉर्म की जाती है? तो उत्तराखंड इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट ईयर भी कोविड-19 कारण इसनूं कैंसल किया गया सी। यह भगवान शिव दे कॉन्ट्रीब्यूशन दे विच ऑर्गेनाइज की जाती है और इसनूं कैंसल किया गया। ठीक है जी, इस तो इलावा उत्तराखंड रिलेटेड ही होर डिफरेंट न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो बिल्कुल रिसेंटली बनाए गए सी, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिता है गवर्नर बेबी रानी मौर्य नूं। गवर्नर याद रखांगे कौन ने? बेबी रानी मौर्य। यह शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ये एडिशनल फैक्ट है, सूँ कितने भी नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट बनेगा, इत्थों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। SSC लैवल के क्वेश्चन इत्थों बनाए जाते हैं। ही बिकम्स शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड विद 115 डेज टैनुअर। 115 दिन के टैनुअर के नाल यह शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और पुष्कर सिंह धामी नूं में भी नैक्सट चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है उत्तराखंड का। इस तो इलावा रिसर्चर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हैडकुआटर कित्थे है? देहरादून दे विच है। इन्होंने ब्लैक बैलिड कोरल स्नेक लभे ने, डिस्कवर किया ब्लैक बैलिड कोरल स्नेक कित्थे? उत्तराखंड दे विच। पहली बार ये उत्तराखंड दे विच पाए गए हैं। ठीक है जी, अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।